फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू सीएचएस हेल्प सेंटर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीएस अमेंडमेंट एक्ट 154(b)(10 राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ ए मेंबर इन हाउसिंग सोसाइटी। तो फ्रेंड्स, ये नो योर राइट्स का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि एज ए मेंबर को डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट करने के क्या राइट्स हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, एनसीएस अमेंडमेंट एक्ट 154(b)(10 राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ अ मेंबर। फर्स्ट इज a member shall be entitled to exercise such rights as provided under this act, rule and bylaw. Second one, every member of a housing society, whether registered before or after the commencement of the Maharashtra Cooperative Society Amendment Act 2019, to whom plot of land or dwelling unit have been allotted, shall be issued certificate of allotment by Cooperative Housing Society under its seal and signature in such form as may be prescribed, subject to the provision of the Transfer Property Act 1882 or Registration Act 1908. Any allotment including reallotment of a plot of a land or dwelling unit in building of a cooperative housing society to its member as per terms of allotment shall entitle such member to hold such plot of land or unit with such title, rights and interest as case may be. Third one is, except when there is a contract to contract, a member of a cooperative housing society shall not be entitled to any title or interest in any plot of land or dwelling unit in a building of cooperative housing society until he has made such payment as may be specified in cooperative housing society towards the cost of such plot or land or construction of such dwelling unit as the case may be to the cooperative housing society. Fourth one, no member shall be eligible for being appointed, nominated, elected, co-opted or for being a member of a committee if he is a defaulter of the society. Fifth one, it shall be duty of member of society to pay the dues of the society within time as decided by the society in its general meeting. Members shall vacate the flat when required for redevelopment of building or building of society as decided in its general meeting. Members shall perform his duties as provided in Act, Rule and Bylaw. Sixth one is, the associate members shall have right to contest the election to the committee with prior written consent of a member. Any action contemplated against the original member in the Act shall be applicable to such an associate member. तो फ्रेंड्स, ये था एनसीएस अमेंडमेंट एक्ट 154(b)(10 जिसमें मेंबर के राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में बताया गया है। अगर आपके पास ये इसकी कॉपी ना हो तो हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का डाउनलोड का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा सीएचएस हेल्प सेंटर का ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये कुछ एफएक्यू है, क्वेश्चन जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछे जाते हैं, तो कुछ क्वेश्चन हम ले लेते हैं जिससे कि आपकी हेल्प हो जाए। ये कुछ कॉमन क्वेश्चन हैं, जैसे डियर सर, एज माई पेरेंट स्टे एट नेटिव प्लेस सो दे हैव नॉमिनेटेड मी एज एसोसिएट मेंबर, कैन आई कंटेस्ट फॉर इलेक्शन टू कमिटी एंड बिकम अ चेयरमैन और सेक्रेटरी। ये अभी हमने डिस्कस किया, वो 10 एनसीएस अमेंडमेंट एक्ट 154(b)(10 में बताया गया है। My society in Kharghar, Navi Mumbai, with 280 flat, recently election conducted by election officer. One candidate come in society who has defaulted. Please suggest how it can be. I will suggest to complain to the deputy registrar for the same. As per NCS Amendment Act 154(b)(10)(4, defaulter can't come in the committee. तो रिटर्निंग ऑफिसर ने ध्यान नहीं दिया या क्या है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन जब तक आप कंप्लेंट नहीं करेंगे तब तक नहीं मिल पाएगा।
to become number 5 amendment as per the 219 जो फॉर्म नंबर 4 नहीं उसको अमेंड कर एज पर 2000 के हिसाब से और 100 रुपीज का एक चेक आप सोसाइटी को दीजिए तो आप सोसाइटी के एसोसिएट मेंबर हो जाएंगे। और साथ में एक एप्लीकेशन लगेगा ओरिजिनल मेंबर के साइन के साथ में कि वो कंसेंट दे रहा है आपको एसोसिएट मेंबर बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कुछ क्वेरी है और कुछ न्यू टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं रिप्लाई करूंगा। और अगर आपने कुछ नए वीडियो सजेस्ट किए हुए हैं तो उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। और कुछ क्वेरी है तो प्लीज ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे पूछ सकते हैं। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आप अपने हाउसिंग सोसाइटीज में अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करिए ताकि हाउसिंग सोसाइटी में बाइलॉ रिलेटेड अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा हो और आपकी सोसाइटी हैप्पीली स्मूथली एंड विदाउट एनी लिटिगेशन रन होती रहे। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।